Good morning, everyone. Dear students, I am Rajendra Simori from the Gnan Manjari Vidyapit. Welcomes you, everyone. Today, we are going on to the mathematics unit number 2. Now, my third video, online lecture delivered in front of you. I hope so that two videos is very useful and you learn more thing from the video. But I feel that some of the times we also require the textbook, because of sometimes whatever we have speak in front of you without anything, without any base, without any resource. So sometimes we cannot collect each and everything. So that's why I'm putting in this video your textbook. So some of the initial point that we discussed in video number 2, again I repeat into this video because of you also familiar with the textbook and you read carefully at your home textbook. So first of all, we starts of this portion that is very important as a points of we are using like that way, and sometimes just we are taking here consider that this portion is no doubt it is relates with the textbook, and we already going into the second part in second video. In second video, we think over each and every points, but relates with the graph. I just put it the three different cases over here. That is also be given into your textbook. Same things we have to put here. Because of I just put this graph portion. In this case 1 and case 2. These are the four figures that you simultaneously seen inside this screen. So in this first, we just take it out. This first one, in case 1 there are 2 and case 2 also having the 2. So total we have 4 different figure over here. Among them, above first 2 figure is indicating that there are 2 points. Here is consider the graph into 2 portion. The graph cuts the x-axis in different 2 points, A and A dash. You here seen silently that A and A dash, that is cut its x-axis. So it means we have say that quadratic polynomials having the 2 distinct point. 2 distinct point means both are the distinct, A and A dash. Both are cuts only the x-axis. In this case, in the second case, only 1 point is cuts the x-axis. You also seen like that A, only 1 points here considered. So we can say that it is coincident, that is only the linear part. We have to concern about that A, only 1 point on it. So it cuts only the x-axis, only 1 point. So these 2 cases indicating that these 2 figures is having the 2 zeros, and this another case 2 having the only zeros. मतलब यहाँ पे एक ही ज़ीरो दिख रहा है, क्योंकि x एक्सिस को इसी पॉइंट पे आप कंसिडर करो तो क्या होता है, आपको पता चलता है कि सपोज हमने ऐसा मान लिया कि यहाँ पे एक पॉइंट है. सिमिलर वे से हम यूज़ करने जाए तो वो कैसे होगा कि सपोज़ यहाँ पे मैंने पॉइंट्स आउट कर लिया है, सेम थिंग हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं तो कितना पॉइंट्स है, सिर्फ एक. और x को कंसीडर कर लो, x को, तो यहाँ पे एक ही पॉइंट है तो मतलब इसके कितने ज़ीरो मिलेंगे, एक. यदि x एक्सिस को 2 पॉइंट से कट करेगा तो ऑब्वियसली हमें कितना मिलेगा,
2 ज़ीरोस मिलेगा। तो पहला केस 2 ज़ीरोस वाला है, सेकंड वन केस that is only 1, and remains we have to use rear, that is also be decided. So first of all, just we have to take, here is that the third case. Third case, there is no any kind of the cuts here, so x-axis remain as it is, not intersect this line. So you all know that in the previous video I also given the hints regarding the open upward and down upward. Open upward and open downwards, that is considered open upward and down upward shapes always be indicating in these polynomials. So this is purely indicates that in this case there is no any kind of the zero, so we can say that ax square plus bx plus c has no any kind of the zero. So there are three cases. First case 2 zeros, second case only 1 zeros, and third case that is no any kind of the zeros. So this is indicating, and we have to using the another portions. So this is a one examples. Thoroughly we have to find out that how much zeros is relates with the x-axis. ये जो लाइन ग्राफ की दिख रही है डिफरेंट 6 केसेस में, ये 6 फिगर आपको यहाँ पे दिख रही है, और 6 फिगर में आपको यही पहचानना है कि कितना एक्स एक्सिस को ये लाइन कट्स करती है। तो पहले फिगर को आप देखें, तो पहले फिगर को हम कंसिडर करें तो क्या होता है, देखो जस्ट वी हैव चेक इट, here only 1 points is indicating. In second one there is no any kind of 1 remains, so x cuts only on the 1 points. In the figure number 2, that is indicating here 1 and 2, so that is having the 2, this is a 1. Here we consider 1 2 and 3, 1 2 and 3, that's why it is having the 3. Similar way x-axis cut is, this is a linear, so it's having the only 1. Here consider that 0, only 1. Here consider that is also 1, and this is consider 1 2 3 4, so that is having the 4. So these all are indicating how much axis this quadratic polynomial ax square plus bx plus c is equal to 0 कितनी कट्स करते हैं, कितने पॉइंट्स पे कट करते हैं, वो हम सीधा सा डिस्प्ले कर ले। मैंने आपको एक होमवर्क दिया था 2.1 और 2.2 का, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद आपसे ना हो, विदाउट शोइंग दिस थिंग्स you can't be able to do sometimes, so just it is only for your knowledge, and you can also directly now working on to the 2.1. so it's very easy, just we are going on to the that 2.1, that is considered here the 6 differences. Very easy 2.1 exercise, we just one by one we have to check it out. In the first figure there is no any kind of the 0, cut its this line not cuts this x-axis, so that's why we put the 0. Here we consider, so first of all we are using that there is no any kind of the 0, so that's why it's a 0. Here indicating only x-axis, that is only 1 point here, that's why it has the 1. Here 1 2 3, that's why it has the cuts the 3 points here. Here also having the 2 points, 1 2 3 4, that is having the 4. And here consider 1 2 3, that is the 1 2 3, so that is also having the 3. So now it's final, you just give the how many points, how many zeros you find out with the x-axis. If it cuts x-axis in how much points, that you have to decide with this particular figure. So है ना, इजी, वेरी इजी थिंग है। यदि आप
करना चाहे तो पूरा चैप्टर ऐसे ही कर लेते हैं, बिकॉज ऑफ आपको सिर्फ देखना है, महसूस करना है, प्रैक्टिस करनी है, तो जल्दी से आप ये सब चीज़ें कर लेंगे, ये मुझे विश्वास है. So just we are going on to the next version. After 2.1 we have to focus on 2.2, but some of the examples is very important that is given into the textbook. So just we have to take this examples only. So here given the example number 2 yesterday, or we can also seeing into the previous video, one method I shown that how much find out the zeros of the given quadratic polynomial. So same thing it given into the example 2. Here given that find the zeros. Just we have to check it out, this formations here. Find the zeros of the quadratic polynomial x square plus 7x plus 10 and verify relationship between the zeros and the coefficient. That is a one kind of example, and that kind of the questions will ask into the examination also. So be careful. Yesterday in previous video also we have to discuss these things. Now we have to, in this video we have to try that if we have the textbook and if we have to alonely study at your home, then how can we study? Using this textbook, mathematics is possible or not, just we check it out and then we have to cover up. So that's why it is also be useful. So this is very easy things we have using. Yesterday in previous video also be given that x square plus 7x plus 10. So we have to splitting the middle term 7x, and then we have to find out the two different factors of this expression. So we have know that 7 and 10, so we have to using 5 2s are 10 and 5 plus 2 7. So we have to divide this 3 terms polynomials convert into the 4 terms. So we have to splitting the middle terms over here, and we have to find out the two different factors of it, x plus 2 and x plus 5. So if we have to using this x plus 2 and x plus 5, that is the factor of these things. So we have using that x is equal to minus 2 and x is equal to minus 5. These are the two different zeros of these polynomials. So we find out easily alpha is equal to minus 2 and beta is equal to minus 5. So just we have to put with this portion, just we have take product of 0 and sum of the 0. In the previous video we learn about that alpha plus beta is equal to minus b upon a, and product of the 0 alpha into beta is equal to c upon a. So similar way we have to using here the minus 2 plus 5 minus 2 minus 5 minus 7 and minus 7 upon 1, that is find out the sum of the 0 and product of the 0. So we easily use of this kind of the examples. In the 2.2 exercise it is also be suggesting this kind of the example. So very easy and very concrete solution you have to get from these examples. जब तक आपको ये एग्जाम्पल्स पूरा समझ में ना आ जाए तब तक आप करते रहो, एक बार 2 बार 3 बार, एक आपके माइंड में अंदर घुस जाना चाहिए क्या कि हमें भाई एक पोलिनोमियल्स दिया गया है, उस पोलिनोमियल्स के क्या हमें फाइंड करना है, ज़ीरोज़ फाइंड करना है. तो ज़ीरोज़ फाइंड करने के लिए हमें 3 टर्म्स का एक्सप्रेशन दिया है, तो उसको हम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करेंगे. मिडल टर्म जैसे ही हो गया हमारा 2 फैक्टर मिल गए, 2 फैक्टर को हम सीधा कंपेयर करेंगे 0 के साथ. यहाँ पे मिल रहा है x प्लस 2 और x प्लस 5, तो x यदि 2 को 0 के साथ इक्वल के सामने ले जाए तो x इज इक्वल टू -2 हो जाएगा और x इज इक्वल टू -5 हो जाएगा. तो -2 एंड -5 दो जो मिले वो अल्फा एंड बीटा है. सो देन वी नो दैट व्हाट इज द एक्चुअल फॉर्मूला फॉर दैट, सम ऑफ द 0 अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट ऑफ द 0 अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा हमने यूज किया. देन वी हैव टू यूजिंग द इक्वेशन माइनस बी अपॉन ए. माइनस बी का मतलब हमें पता है कि कोएफिशिएंट ऑफ x एंड डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. यदि हम ये याद नहीं रख सकते तो माइनस बी अपॉन ए भी याद रख सकते हैं.
तो जैसे ही हम कंपेयर करेंगे हमें ये चीज़ मिल जाएंगी, इसके बदौलत हम ज़ीरोज़ फाइंड कर लेंगे और कंपेयर भी कर लेंगे। तो ये चीज़ से बड़ी इजीली हम ये चीज़ फाइंड कर सकते हैं। अब एक तीसरा एग्जांपल यहाँ पे ऐसा दिया गया है कि कभी कभी ऐसा भी आपको कहा जाता है कि फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द पोलिनोमियल्स हैविंग ओनली टू टर्म्स लाइक एक्स स्क्वायर माइनस 3 and verify the relationship between the zeros and the coefficient। हमें वेरीफाई भी करना है और फाइंड ज़ीरो भी फाइंड करना है गिवन एक्स स्क्वायर माइनस 3 के ऊपर। हमें अब ये जो एग्जांपल ऐसा है कि कभी कभी हमें थोड़ी दुविधा हो जाती है कि हम इसे हैंडल कैसे हैंडल करें कि एक्स स्क्वायर माइनस 3 तो कभी हमारे माइंड में ऐसा आता ही नहीं कि क्या करना चाहिए। सो समटाइम्स वी जस्ट नॉट रिकॉलिंग आइडेंटिटी और ये सब हमें एकदम से रिकॉल नहीं होती। तो हमें यहाँ पे एक चीज़ करनी है कि 9th स्टैंडर्ड में जो भी आइडेंटिटी हम सीख कर आए हैं वो चीज़ यहाँ पे परफेक्टली याद रखनी है। तो वो आइडेंटिटी को हम जितना याद रख सके इतना याद रखें। एक्स स्क्वायर माइनस 3 का मतलब ऐसा होता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बताया गया है आपको को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी याद करो 9th स्टैंडर्ड की। तो इसमें क्या हुआ था, ए माइनस बी ए प्लस बी होता था। ए माइनस बी ए प्लस बी दैट इज द फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमें एक्स स्क्वायर माइनस 3 दिया गया है, तो हम इसका कैसे करें। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में यदि हमें ये कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर तो है ही, तो ए स्क्वायर तो है ही, बी स्क्वायर की जगह हम 3 को स्क्वायर करेंगे। 3 का स्क्वायर हम कर रहे हैं, या तो हम 3 का अंडर रूट कर दे, दोनों सिमिलर है। एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर होता नहीं, जस्ट वी हैव टू टेक एक्स का एक्स यूज कर लेते हैं। ए माइनस बी ए प्लस बी जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है, वैसे एक्स स्क्वायर माइनस 3 का यदि एक्स स्क्वायर 3 स्क्वायर का यूज करें तो ऑटोमेटिकली हम कैसे याद रख सकते हैं, एक्स 3 का स्क्वायर रूट हम यूज करेंगे तो एक्स माइनस अंडर रूट 3 एक्स प्लस अंडर रूट 3। हम ऐसा तो कर नहीं सकते। यदि यहाँ पे 9 गिवन होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 9 होता, तो हम सीधा से एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3 रख सकते हैं। बट 3 का तो स्क्वायर रूट होता नहीं, तो हम उसको स्क्वायर रूट में रखेंगे, एक्स माइनस अंडर रूट 3 एक्स प्लस अंडर रूट 3। यदि एक्स स्क्वायर माइनस 16 दिया गया तब भी हम इसका फैक्टर इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, एक्स माइनस 4 एक्स प्लस 4। बट हियर गिवन दैट एक्स स्क्वायर माइनस 3, तो x का स्क्वायर है तो x माइनस 3 का अंडर रूट हम ले लेते हैं। अंडर रूट 3 क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली 3 हो जाता है, तो 3 तो एज इट इज ही रहा। तो हमने क्या, x माइनस अंडर रूट 3 एक्स प्लस अंडर रूट 3, ये दो जो चीज़ है वो इम्पोर्टेंट है इस तरह के सम में, और हमें यही चीज़ इसमें याद रखनी है। दूसरी चीज़ यहाँ पे जैसे हमने मिल गया कि x माइनस अंडर रूट 3 और x प्लस अंडर रूट 3, इसको 0 के साथ कंपेयर करें तो x इज इक्वल टू अंडर रूट 3 हो गया और एक x इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3 हो गया। अब ये दो आपके जीरोस हो गए, अंडर रूट 3 एंड माइनस अंडर रूट 3। जस्ट वी हैव टू पुट विथ दिस सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरो। सिमिलर वे जो प्रीवियस एग्जाम्पल में हमने देखा वही चीज़ हम यहाँ पे भी करेंगे। अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यदि इसको माइनस बी अपॉन ए के फॉर्म में रखेंगे तो भी क्या हो जाएगा, हमारे पास ऊपर ही 0 है तो ऑटोमेटिकली न्यूमरेटर 0 रहेगा, तो ऑटोमेटिकली डिनोमिनेटर जो भी है वो तो 0 ही रहेगा। तो यहाँ पे 0 मिलता है। अंडर रूट 3 इंटू माइनस अंडर रूट 3 का मतलब होता है 3, अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3 का मतलब होता है 3, बट कैसा, माइनस। और माइनस यहाँ पे हम देखें तो c अपॉन ए है, तो c अपॉन ए को हम समझ ले तो यहाँ पे हमारी टर्म्स एक्स स्क्वायर माइनस 3 है, तो कांस्टेंट की जगह पे क्या है, माइनस 3 है, सो वी हैव टू पुट माइनस 3। और ए स्क्वायर का क्या कोएफिशिएंट है, 1 है, सो माइनस 3 अपॉन 1। So that's why it is very easy things to cover up this portion. Now let us move into the next examples and we have to find out the another things also. So sometimes also be asked like this kind of the example, find a quadratic polynomial
the sum and product of whose zeros are -3 and 2 respectively। अभी यहाँ पे क्या है कि आपको दो जीरोस दिए गए हैं, -3 एंड 2, तो -3 एंड 2 आपको गिवन है यहाँ पे, सम एंड प्रोडक्ट दोनों। इसके ऊपर से आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाना है। अब तक के एग्जाम्पल पे क्या था कि सिर्फ आपको गिवन पोलिनोमियल में से आपको इसके ज़ीरो फाइंड करने थे और रिलेशनशिप चेक करनी थी, सम ऑफ द प्रोडक्ट, सम ऑफ द ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरो। बट यहाँ पे क्या दिया गया, आपको एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स फॉर्म करना है विद द गिवन रूट्स और समटाइम्स इट गिवन इनटू द पार्ट्स। सो हियर गिवन दैट -3 and 2, so alpha plus beta we have to using plus minus, that is a sum, so alpha plus beta हमारा sum है तो -3 रहेगा। Alpha into beta, that is considered the 2, because -3 and 2 respectively given the sum and the product of whose zeros are -3 and 2। तो अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ द जीरोज हमारा क्या हो गया, -3 हो गया, और अल्फा बीटा क्या हो गया, 2 हो गए। अब हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा को हम दूसरी तरह से क्या लिख सकते हैं, -b/a भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखने वाली चीज़ है कि यदि हमारे पास -3 आया है और उसके सामने रहा है -b/a, तो हम b की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं ना। कैसे करेंगे, -3 के नीचे कुछ नहीं है, देखो इज इक्वल टू -b/a, वो तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में है ही, -3 के नीचे डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है। तो हम डिनोमिनेटर में जब भी कुछ नहीं होता तो हम इसके नीचे एक रख सकते हैं ना। तो हम ऐसा रख सकते हैं -3 1 इज इक्वल टू, फिर से हम करते हैं, शायद आपको ये पता चले या जिसको भी पता चल जाता है दैट इज़ वेरी गुड। हम यहाँ पे करते हैं -3 को हम लेते हैं -3, जिसके नीचे कुछ नहीं है तब हम क्या ले सकते हैं इसके बदले में, -b/a। अब आप देखो सिंपल सा, इसकी मैं बात कर रहा हूँ कि हम कैसे b की वैल्यू फाइंड करें, a की वैल्यू फाइंड करें, क्योंकि हमें पोलिनोमियल्स फॉर्म करना है तो हमारा ax² + bx + c फॉर्म में आना चाहिए ना। तो -3/1 इज इक्वल टू -b/a, तो -3/1 हम रखें तो ऐसे ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, आप वैसे भी देखो तो a इज इक्वल टू 1 आ जाता है और b इज इक्वल टू 3 आ जाता है। सीधा सा कंपेयर करो तो a इज इक्वल टू 1 हो गया और ये दोनों माइनस माइनस यहाँ से कट हो गए तो b इज इक्वल टू 3 हो गया। तो यहाँ पे दिखाता है a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 3 एंड सेम थिंग वी आर यूजिंग फ्रॉम द अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा इज गिवन दैट 2, so again we are concerned alpha and beta, so it is given 2, just we have to use 2, and then we are also here given that 2/1 is equal to c/a, ऐसा भी लिख सकते हैं हम। तो a की जगह पे तो 1 आ गया, c की जगह पे क्या आया, 2 आया। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है c इज इक्वल टू 2, सिमिलर वे b इज इक्वल टू 3 एंड a इज इक्वल टू 1। तो इससे हम पूरी चीज़ फाइंड कर ली। ऐसे टाइप के एग्जाम्पल पे आप खास ध्यान रखना। अब मैं बात कर रहा हूँ कि यदि आपके पास ये चीज़ आ गई तो हम इजी वे से ये फाइंड कर सकते हैं। तो इस टाइप के भी एग्जाम्पल आपके अंदर आ सकता है। और दूसरी चीज़ आपको बता दूँ कि ये 2.2 की एक्सरसाइज है, वो पूरी तरह से अच्छी तरह से आप ऐसा करो कि कभी भी आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है, मैंने ऐसा बोला कि 2.2 के एग्जाम्पल में तो कुछ है नहीं, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड इट्स कोएफिशिएंट। तो ये 6 एग्जाम्पल्स मैंने जो आपको एग्जाम्पल्स अभी बताया वो एग्जाम्पल के ऊपर से आप कर सकते हो। और दूसरा जो चीज़ आपके कोई भी ज़ीरोज़ आपको बता दिया गया है, मतलब आपका सम ऑफ द ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ बताया दिया गया है, तो फर्स्ट वन फॉर एग्जांपल हम इस एग्जांपल की बात करें
तो इस एग्जाम्पल की हम बात करें, फर्स्ट वन तो 1/4 एंड -1 है, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/4 हो जाएगा, और -1 है वो क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। तो सम ऑफ द जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज आपको पहले से बताया गया है, और उसके ऊपर से आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स फाइंड करना है। तो आई होप सो दैट एवरीबडी एंजॉयड दिस थिंग्स, एंड अगेन this video is just for repetition with the textbook, so you can also homework on the same 2.1 and 2.2. I hope so that today you more emphasize on this exercise. It is very easy for you, that's why you covered up these things. Very sincerely you have to work on it, because of sometimes what will happen, हमें ये पता नहीं चलता है कि कभी कभी ये चीज़ को हम कैसे सॉल्व करें। सो today's period is over. I hope so that everybody has getting more, and do exercise sincerely 2.1 and 2.2 again. Thank you very much. Have a nice day.